today we will start with a character set in C. So just like the C tokens, like a particular C tokens is categorized or mainly divided into the keywords, identifiers, constant, variables, special symbols, operators, and some of the bifurcations are also there in case of the in case of the variable, that variables are primary fundamental variables, then again it is user defined, and system accessible. So these are the what exactly the bifurcations or classifications of a C tokens, which we will use while we are writing the C program in a वन एडिटर कोई भी हो सकता है, नोटपैड में भी आप लिख सकते हो या फिर आप डायरेक्टली टर्बो सी के भी एडिटर में लिख सकते हो, राइट. सो अलॉन्ग विद दैट द set character set in C, these are also used. The characters that can be used to form words, numbers, and expressions depend upon the computer on which the program is run. So इनका भी कन्वर्शन बाइनरी में ही होता है, बट वी शुड नो दैट हाउ दिस पर्टिकुलर character sets can be used in the program. A subset of a characters is available that can be used on a most personal, micro, mini and mainframe computers. जो हमने टाइप्स देखे थे, पर्सनल कंप्यूटर मीन्स हमको पीसी हम उसको बोलते हैं, ओनली फाइल स्टोरेज एक्सेसिंग और स्टोरिंग द फाइल्स, then internet facility, that particular most common, that is a personal computer. Then micro, mini and mainframe computers, these are designed and developed for the special purposes. जैसे mainframe computer, that is a server supported computer, वो आपको सर्वर का जो रोल रहेगा डेटा स्टोरेज का, that can be done with the help of a mainframe computer. And we know that the micro and mini computer, right? So it is a subset of characters which is available or which can be used in these particular computers. Total, a C language that supports the total 256 characters. The characters in the C are grouped into the following categories. So जो भी categories है उसमें से जितने भी हैं उनकी सबकी addition वगैरह करके that will be the 256 characters that we can use, and every character is having conversion with the help of a binary language. Though when we start with the grouping or the categories, starts with the letters. C language supports all the alphabets, that means capital, means lowercase and uppercase, 26 26. So total 52 alphabets that can support. Then digits 0 to 9, बाकी तो सब उसके combination ही है, 1 0 1 1 1 2 and so on, right? So C language supports the 10 digits which are used to construct the numerical values. So first is the category, that is the letter, that we know the 52 alphabets. Second category, that is the digits, that we also know, that is 0 to 9. Now the third one is the special character. उसमें से कुछ हमने देखे भी है C tokens में. That C language supports a rich set of special symbols that includes symbols to perform mathematical operations, to check the conditions and other special symbols. So it will starting from a special character dash, then tilde operator, ये भी हमने देखा है, then ampersand, then hash तो हम प्री प्रोसेसर करके यूज करते हैं, hash include, then dollar sign, then परसेंट साइन हम यूज करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर के रूप में जब भी आप printf लिखते हो या फिर scanf लिखते हो, ठीक है, जब हम प्रोग्राम में लिखने वाले हैं. सो दैट परसेंट साइन इज यूज्ड इन ऑर्डर टू एक्नॉलेज दैट which kind of data that will be processed by or that will be read by the computer कौन से प्रकार का डेटा रीड करने वाला है, ये उसको हम पहले एक्सेस मॉडिफायर, यानी वो किस प्रकार से डेटा, कौन सा टाइप का डेटा रीड करने वाला है, ये हमको उसको बताना पड़ता है सबसे पहले. तो अगर हम इंटीजर डेटा के साथ डील कर रहे हैं, so for that the digit, integer means a digit, percent d is used. If you are dealing with the float type of data या float number वगैरह है तो परसेंट f यूज करते हैं, कैरेक्टर टाइप है तो परसेंट c यूज करते हैं, like and so on. So when we are talking about this percent sign, it is commonly used. Then
दिस ऑपरेटर, दिस कैरेक्टर एनीवन नो? परसेंट साइन के बाद में उसको क्या बोलते हैं? टू द पावर। टू द पावर, एग्जैक्टली। व्हेन वी आर राइटिंग ऑन अ पेन एंड पेपर, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं टू टू द पावर वन, टू टू द पावर टू, टू टू द पावर थ्री। ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे हम डिवीजन का साइन यूज करते हैं जनरली, राइट? टू डॉट्स के बीच में एक लाइन खींच देते हैं, दैट इज अ डिवीजन साइन। बट कंप्यूटर में वो साइन अवेलेबल नहीं है, पावर की भी साइन अवेलेबल नहीं है। पावर का एक फंक्शन अवेलेबल है, ठीक है, वो मैथ फंक्शन में हम देखेंगे, मैथ डॉट एच में। एक्सपोनेंशियल जैसे अवेलेबल है वैसे पावर, पी ओ डब्ल्यू नाम का एक फंक्शन अवेलेबल है। बट उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक साइन यूज होती है, दैट इज अ पावर साइन। देन एंड, देन स्टार। दिस स्टार इज यूज फॉर अ कमेंट। कमेंट जब हम करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में, इन दैट केस वी कैन यूज द स्टार स्लैश। ये जो स्लैश है क्वेश्चन मार्क के बाजू में, दैट स्लैश कैन बी यूज्ड। देन दिस इज द ब्रैकेट्स दैट वी नो, विच एनक्लोज द प्रिंटफ, स्कैनफ। उसके अंदर जो भी डेटा हमको लिखना है डबल कोट्स में, इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करके हम उसके अंदर लिखते हैं। then underscore, then these are the mathematical, minus, plus, equal to, curly brackets, square brackets, semicolon, colon, single quote, double quote, forward slash, backward slash, question mark, then dot. dot जनरली हम कहाँ पे यूज करते हैं? सिस्टम डॉट एच, या फिर आयोस्ट्रीम डॉट एच, या फिर कोनियो डॉट एच। तो जो डॉट हेडर फाइल है, या फिर कोई भी फाइल सेव करते टाइम पे हम डॉट एक्सटेंशन या फिर सी एक्सटेंशन देते हैं, उसके बीच में डॉट लिखते हैं। जैसे हमने एक फाइल लिखी थी नोटपैड में, सम डॉट सी, तो वहाँ पे हम डॉट यूज़ करते हैं, डॉट ऑपरेटर भी रहता है, बट इट इज़ ट्रीटेड एज अ स्पेशल कैरेक्टर। एंड इफ यू कंपेयर द टू नंबर्स, ग्रेटर देन, लेस देन, then backward slash, then this line is this vertical line is used for a कंडीशनल चेकिंग, दैट इज और एंड, ये इसके लिए भी यूज होते हैं। डबल लाइंस भी रहती है हमारे इसमें, वो भी हम यूज कर सकते हैं, राइट? सो दीज आर द कैरेक्टर सेट। पहले तो लेटर्स थे, दैट वी नो 52, सेकंड डिजिट्स है 10 है वो 0 to 9, थर्ड इज अ स्पेशल कैरेक्टर्स। ये सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स जो जनरली आपके फंक्शनल कीज जो है उसके नीचे दिखते हैं। आपका कीबोर्ड अगर आप देखेंगे, या फिर लैपटॉप का कीबोर्ड देखेंगे, डेस्कटॉप का कीबोर्ड, उसके एग्जैक्ट नीचे फंक्शन कीज जो रहती है पावर बटन के नीचे, उसके नीचे जो है 1 2 3 4 5 जो भी नंबर्स रहते हैं, वहाँ पे ये सारे स्पेशल कैरेक्टर जनरली आपको दिखते हैं, राइट? देन वाइट स्पेसेस, ये बहुत बार हमने देखे हैं, वाइट स्पेसेस, ब्लैंक्स हम उसको बोलते हैं। वाइट स्पेसेस is any section of a document that is unused or a space around an object. It's just like that, in order to separate the two words, two numbers, or two things which we are putting or which we are giving to the computer, तो उसको separate दिखाने के लिए, क्योंकि वो अलग अलग है, we use the white spaces. White spaces help separate paragraphs of a text, graphics, and other portions of a document, and help a document look less crowded. अगर सब हम एक जैसे ही लिखते हैं, मैंने विदाउट स्पेसेस, विदाउट वाइट स्पेस अगर लिखते, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज, राइट? एंड दिस वाइट स्पेसेस इज ऑल्सो यूज वाइल योर सिस्टम रीड द फाइल। जैसे अगर मुझे एक यही एक पेज है, ये पेज अगर मैं वर्ड में रखता हूँ, तो इसमें अगर मैं कंट्रोल एफ करूँ, ठीक है, कंट्रोल एफ करने के बाद कोई अगर कीवर्ड या फिर कोई भी वर्ड अगर मैं इसमें सर्च कर रहा हूँ, जैसे मैं लुक, एल डबल ओ के लुक, ये वर्ड सर्च करना चाहता हूँ कि इसमें कितनी बार यूज़ किया गया है, तो मैं कंट्रोल एफ करता हूँ, लुक उसमें टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ। पहले बार एंटर हिट करूँगा, पहला मिल जाएगा, दूसरी बार एंटर करूँगा, अगर होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, इट विल चेक टू द कंप्लीट कंटेंट विच इज़ प्रेजेंट ऑन योर डॉक्यूमेंट। जितने भी डॉक्यूमेंट में कंटेंट है उसको सबको चेक करता है, और एट द एंड उसको क्या मिलता है? वाइट स्पेस मिलता है जो मैच नहीं होता है, और मैच नहीं हुआ तो वहाँ पे वो रुक जाता है, वो फिर से चेक नहीं करते बैठता है, ठीक है? वो उतना ही रिजल्ट शो करेगा कि लुक नाम का ये जो वर्ड है, ये आपके डॉक्यूमेंट में 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार रिपीट हुआ होगा वो उतना ही बताएगा। लास्ट टाइम जो रहेगा उसके बाद वहाँ पे वाइट स्पेसेस आ जाएगा, राइट?
So that is what a role of a white space. वाइट स्पेसेस दैट इज अ ब्लैंक स्पेस भी हम बोल सकते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल टैब भी बोल सकते हैं जैसे हम टैब देते हैं. देन कैरेज रिटर्न, न्यू लाइन, फॉर्म फीड. ठीक है, ये उसके कुछ नॉमेनक्लेचर्स हैं जिसके अलग अलग पर्पसेस रहते हैं. न्यू लाइन यानी अगर आप पैराग्राफ देते हो, ठीक है, तो एक पैराग्राफ खत्म होने के बाद इमीडिएटली दूसरा अगर पैराग्राफ स्टार्ट करना है हमको तो हम न्यू लाइन पे वो लेते हैं. या फिर कभी आप लेटर राइटिंग करते हो ना, लेटर लिखते हो, तो पहले टू और उसके बाद उसका एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप पैराग्राफ देते हो तो वो न्यू लाइन से स्टार्ट करते हो, रिस्पेक्टेड सर मैडम जो भी है. सो दैट वाज रिलेटेड टू द न्यू लाइन. फॉर्म फीड मीन्स फॉर्म दैट पर्टिकुलर कर्सर. अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पेस देनी है, ठीक है, तो वहाँ तक आप वो आपको प्रोवाइड कर सकता है वाइट स्पेसेस. सो दैट इज व्हाट अ रोल. एम आई ऑडिबल और एनी साउंड इज देयर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. थ्रू Yes, sir. थ्रू आउट द डिस्कशन एम आई ऑडिबल ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that is the role of a form feed, right? Then the compiler ignores white spaces unless they are a part of a string constant. White spaces may be used to separate the words but are prohibited between the characters of a keywords and the identifiers. जो keywords हमने देखे हैं, auto, integer, बाद में कैरेक्टर, बाद में फ्लोट, डबल, जो भी कीवर्ड्स देखे हैं, बाद में आइडेंटिफायर्स देखे हैं, तो उनके बीच में ये प्रोहिबिटेड है. दैट इज ओनली द पार्ट. देन वैसे भी कंपाइलर इनको इग्नोर कर लेता है अनलेस दे आर द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट. स्ट्रिंग कांस्टेंट के बीच में अगर आते हैं देन इट विल आइडेंटिफाइड, अदरवाइज दे विल बी इग्नोर्ड. द एंटायर कैरेक्टर सेट is given in the table. That table may be not clearly visible, right? Yes, sir. Is Sir, it zoom visible? करने के बाद दिखता है. Okay, okay, okay. So don't worry, I will put that table in your group also. But it is only having a few characters, that uppercase A to Z, बाद में लोअर केस A to Z, these are the letters, then digits, then special character and then white spaces. ठीक है, जिसमें वही है, कोलन है, सेमी कोलन है, डॉट है, देन कैरेट है, एस्ट्रिक साइन है, माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, राइट ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रैकेट, डॉलर साइन और परसेंटेज साइन, हैश साइन, यही सभी उसमें कैरेक्टर सेट में उन्होंने एक पर्टिकुलर डायग्राम में बताए हुए हैं. दैट्स इट, right? So this is what exactly the character set, which is categorized into the four parts. First is the letter, second is the digit, third is the special characters, and fourth one is the white spaces, right? So moving towards the next topic, that is what program. सी टोकन्स का पार्ट हमारा हो चुका है, तो उसके पहले बैकस्लैश कैरेक्टर, जैसे हमने स्पेशल कैरेक्टर्स देखे या फिर कैरेक्टर सेट देखा, उसी प्रकार से और एक टॉपिक है और एक पार्ट रहता है जो हम यूज करते हैं, बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट और एस्केप सीक्वेंस इन सी. अब जनरली ये जो बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट है ये वर्ड बहुत बार यूज नहीं होता है, बट एस्केप सीक्वेंस इन सी ये बहुत बार यूज होता है, क्योंकि ये बैकस्लैश जब हम बोलेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट, तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि बैकस्लैश यानी कोई तो भी स्लैश है और वो एकदम से याद आ जाएगा कि हाँ चलो ठीक है. बट जब हम एस्केप सीक्वेंस इन सी इसके बारे में बात करते हैं तो इजीली रिकॉल नहीं होता, और यहीं पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर सेटर जो रहते हैं, फैकल्टी जो रहते हैं, जानबूझ के ये वर्ड जो है, ये मीनिंग जो है ये पूछते हैं कि व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस इन सी. ठीक है, अब एस्केप सीक्वेंस, एस्केप यानी बाहर निकलना, किसी भी चीज से बाहर निकलना, ठीक है, और उसका सीक्वेंसिंग,
ठीक है, तो ये मीनिंग आता है सबसे पहले दिमाग में, ठीक है। बट बोथ आर कांस्टेंट, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट and the escape sequence all are equal to each other. So the C supports the sum of the special backslash character constants that are used in a output function. ये सारे के जो होते हैं ये हम इनपुट देते हैं इनको, बट रिजल्ट जो है इनका दैट विल बी शो इन अ आउटपुट. In order to get the output in proper manner, in a well aligned manner, we will use that particular escape sequence. So for example, the symbol backslash n stands for a new line character. जैसे मैंने अभी बताया कि that when we start the new paragraph, we will switch to the new particular line. और फिर जब हम लिखते हैं, अगर कोई भी ऐसी चीज़ हमको लिखने की describe the C language or describe the computer, so we will start with the first part, that hardware, second part software. तो पैराग्राफ जब आप करोगे तो हार्डवेयर का अलग रखोगे, सॉफ्टवेयर का अलग रखोगे. सो सॉफ्टवेयर का जब आप अलग रखोगे तो पैराग्राफ बनाना है, तो डेफिनेटली वी हैव टू स्विच टू द न्यू लाइन. सिमिलरली व्हेन वी आर डीलिंग विद द आउटपुट, इन दैट केस हाउ दैट आउटपुट शुड बी गुड लुक, और उसका रिप्रेजेंटेशन जो रहेगा वो यूज़र फ्रेंडली रहना चाहिए दैट आउटपुट का, सो दैट द यूज़र कैन इंटरेक्ट विद दैट पर्टिकुलर स्क्रीन एंड द वन यू वांट टू शो. तो उसके लिए हम एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं, जिसमें से एक पहला है एग्जांपल दैट बैकस्लैश एन. तो उसमें न्यू लाइन पे कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं. A list of such backslash character constants is given in below. Each one of them represents one character. Although they consist of two characters, these characters combinations is known as a escape sequence. यानी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है. Although they consist of two characters also. So इनका जो कॉम्बिनेशन है 1 and 2 कैरेक्टर, दैट वी कैन ट्रीट इट एज अ एस्केप सीक्वेंस. जनरली ये पूछते नहीं है, बट किसी क्वेश्चन के साथ एक अटैच क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सप्लेन द सी टोकन्स एंड एक्सप्लेन एस्केप सीक्वेंस एंड के साथ. यानी सी टोकन्स भी पूछ लिया और उसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया 1-2 मार्क के लिए कि एस्केप सीक्वेंस भी बता दो. तो जनरली जो याद रखने वाला एस्केप सीक्वेंस है, दैट इज फर्स्ट वन इज बैकस्लैश एन, उसके बाद है बैकस्लैश 0, जो याद रख सकते हैं हम, नल कैरेक्टर. बैकस्लैश 0 मीन्स नल कैरेक्टर, उसके बाद कोई कैरेक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि इटसेल्फ 0 मीन्स दैट इज नथिंग, इट इज अ नल कैरेक्टर, फुल स्टॉप हो जाएगा. बाद में बैकस्लैश बी रहेगा, जिसको हम बैकस्पेस बोलते हैं, बी फॉर अ बैकस्पेस. बैकस्लैश ए ऑडिएबल अलर्ट, दैट मीन्स अ बेल. देन बैकस्लैश एफ, जो हमने इसके पहले फॉर्म फीड देखा वाइट स्पेसेस में, बैकस्लैश एफ फॉर्म फीड. बैकस्लैश एन दैट वी नो न्यू लाइन. बैकस्लैश आर कैरेज रिटर्न. बैकस्लैश टी हॉरिजॉन्टल टैब. बैकस्लैश वी वर्टिकल टैब. ओनली बैकस्लैश एंड डबल कोट्स. जनरली ये सिंगल कैरेक्टर्स है, इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल कोट में. दैट रूल इज constant everywhere. If you want to represent a single character, we have to use single notations. ठीक है. और अगर डबल कोट्स सिंगल कोट्स यूज करते हैं तो उसमें एक सिंगल कैरेक्टर ही आएगा. डबल कोट्स यूज करते हैं या फिर आपको स्ट्रिंग यूज करनी है, जैसे सिपना, हेलो, ये पूरी स्ट्रिंग यूज करनी है, इन दैट केस वी हैव टू यूज द डबल कोट्स. प्रिंटफ में भी देखा है आपने कि वी आर यूजिंग द डबल कोट्स. बट इफ देयर इज अ सिंगल कैरेक्टर, single quotes are used. Then it is a single quote, then it is a double quote, यानी यहाँ पे 3 आ गए हैं. ठीक है. बाद में क्वेश्चन मार्क एंड डबल स्लैश, दैट इज अ बैक स्लैश एंड नल कैरेक्टर. सो आउट ऑफ दिस एस्केप सीक्वेंस, दैट न्यू लाइन, देन नल कैरेक्टर, then backspace, horizontal tab, vertical tab and question mark, these are the very easy to remember. पूरे के पूरे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप एस्केप सीक्वेंस में 5 भी अगर लिखते हो और उसका मीनिंग भी लिखते हो, दैट इज़ सफिशिएंट, क्योंकि ये क्वेश्चन इंडिविजुअली कभी भी 6-7 मार्क के लिए या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं पूछा गया है. ठीक है. सो बट दैट वी शुड नो दैट
ये यूज़ कैसे होते हैं, ये हम प्रोग्राम्स में यूज़ करने वाले हैं इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट योर आउटपुट इन अ गुड मैनर, राइट। देन डिफरेंट वेज टू राइट अ void main। जो void main अब तक के हमने देखा है कि इट इज जस्ट लाइक द void space main and the brackets, but how we can also write that void main in different manner। Simply void main we can write, but there is no need to return or to write a return zero क्योंकि void लिख रहे हैं और void का मीनिंग क्या है, एनीवन? empty thing. एम्प्टी, नथिंग, ठीक है। तो अगर उसके सामने हम नथिंग लिख रहे हैं या फिर एम्प्टी लिख रहे हैं, इट मीन्स दैट द मेन क्लास विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, वो आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। बट अगर उसके सामने आप इंटीजर मेन लिखते हो, सो वी हैव टू राइट अ रिटर्न जीरो, मीन्स वो आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने वाला है, तो आप वहाँ पे रिटर्न जीरो आपको लिखना ज़रूरी है, राइट। सो द फर्स्ट पार्ट इज दैट इज void main, देयर इज नो नीड टू राइट अ रिटर्न जीरो। देन void main void है ना, वो हो गया empty main इन ब्रैकेट empty, ठीक। तो वहाँ पे ब्रैकेट में उन्होंने empty लिखने का एक फॉर्मेट है, जनरली वो ऐसा लिखा नहीं जाता, बट वो एक फॉर्मेट है, वी कैन राइट इट ऑल्सो। जैसे void main इन ब्रैकेट इंटीजर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। void main इन ब्रैकेट इंटीजर मीन्स दैट मेन क्लास विल एक्सेप्ट ओनली द इंटीजर वैल्यू, अगर ऐसा लिखते हैं तो void main इन ब्रैकेट इंटीजर। तो रिटर्न करते टाइम पे रिटर्न जीरो की लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपका जो मेन क्लास है जिसके ब्रैकेट में आपने इंटीजर लिख दिया है, तो वो फ्लोट वैल्यू नहीं लेगा, वो कैरेक्टर वैल्यू नहीं लेगा, वो ओनली इंटीजर वैल्यू ही लेगा, दैट इज़ अ restriction। Then integer main that we know we have to write a return zero, then integer main void, in that case we also have to write a return zero। then main, सिंपली मेन लिखा, इंटीजर भी नहीं लिखा, void भी नहीं लिखा, और उसके अंदर ब्रैकेट्स में कोई पैरामीटर भी हमने पास किया, इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमने void लिखा है ना ये ब्रैकेट के अंदर, सेकंड इसमें और फोर्थ इसमें, इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर जो भी देते हैं हम उसको पैरामीटर्स बोलते हैं। सो दैट इंटीजर मेन void, इन दैट केस वी हैव टू राइट अ रिटर्न जीरो। सिंपल मेन भी लिखा खाली, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं, ओनली ब्रैकेट, सो इन दैट केस वी हैव टू राइट अ रिटर्न जीरो। एंड जब हम मेन void लिखते हैं, ऊपर का मेन और नीचे का मेन वैसे ही है, void लिखो या फिर मत लिखो उसका भी मीनिंग सेम ही है, ठीक है। बट void जब लिखते हैं इट अश्योर्स यू दैट देर इज नथिंग, नहीं लिखते हो तो भी वही अश्योरेंस मिलेगा, बट ऐसा हो सकता है कि मे बी देर इज समथिंग दैट विल बी रिटर्न और दैट विल बी पुट इन द पैरामीटर। बट इन केस ऑफ राइटिंग अ void, it is strictly doing nothing or strictly having nothing to return। But in case of last two, in both the cases we have to write a return zero, just what we are not using any integer or any void in front of a main के पहले हम void नहीं लिख रहे, it means that it is treated as a, it returns something, so that may be the integer type, so just because of that we are writing a return zero in both the last two cases, right? These are the some of the ways to write a void main। Then starting with the program, right? So write a program and describe the same for a printing the hello message। अब हमको एक सिंपल प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको एक printf स्टेटमेंट यूज करना है, एंड विद द हेल्प ऑफ अ printf स्टेटमेंट वी कैन डिस्प्ले द वन हेलो मैसेज, ठीक है। whenever we are reading द टाइटल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोग्राम, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हुई रहती हैं, what we have to take, how we can operate it, and what the output should be, or like that output should you achieve। ये सारी चीज़ें आपके जो क्वेश्चन रहता है उसमें दी हुई रहती हैं। सिमिलरली हियर दे ऑल्सो से दैट प्रिंटिंग अ हेलो मैसेज, so whenever there is a print, then in that case we have to use the print f। So when we use the printf, we have to use the standard input output header files, right? So we will start with the first line or first point, that is hash include stdio.h। So it contains the hash। hash अभी इसके पहले हमने देखा था
वो स्पेशल सिंबल्स में था या फिर वाइट स्पेसेस में था या फिर कैरेक्टर सेट में था? कहाँ पे था हैश? एनीवन रिमेम्बर? Special symbols. एग्जैक्टली, अंडर द कैरेक्टर सेट। ठीक है, जो कैरेक्टर सेट के 4 टाइप्स हैं, लेटर, डिजिट, स्पेशल सिंबल, वाइट स्पेसेस, उसके अंदर जो स्पेशल सिंबल्स है वहाँ पे हैश था। सो फर्स्ट लाइन दैट कंटेन्स द हैश विच मीन्स अ प्री प्रोसेसर, and hash include is a preprocessor directive which means going to include the head of the C program before the start of the main function. Head means that header file that will be added, that will be included in your program before the main function starts execution. यानी मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले आपको stdio.h ये हेडर फाइल इंक्लूड कर लेनी है, राइट? Then stdio.h is a header file, which means it is a standard input output file and it contains the definition of a input and output function like printf and scanf. Definition यानी क्या? How that printf can work, how scanf can read the data. printf क्या करता है? Display the data, क्योंकि उसका नाम है printf, print function. scanf, scanf, scan function, तो जो हम नॉर्मली करते हैं, हमारा जो प्रिंटर है वो क्या करता है? आउटपुट देता है, आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, करेक्ट? इज इट राइट? Yes, sir. सो प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। और स्कैनर क्या है? Input device. इनपुट डिवाइस। सो व्हेन वी वांट अ आउटपुट, means some message should be displayed, we have to use the printf function, and when we have to put the data and that data should be read by the computer, वो डेटा कंप्यूटर ने रीड करना चाहिए, दैट मीन्स इट इज अ इनपुट डिवाइस और इनपुट पार्ट। ठीक है, स्कैनर जो रहता है वो इनपुट डिवाइस करके हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो उसको स्कैन करता है डॉक्यूमेंट को, और वो डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, आइदर इन द जेपीजी या फिर जो भी इमेज के फॉर्मेट में या फिर पीडीएफ वगैरह जो भी है, जैसे आपको स्कैन करना है, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, so that will be stored in your computer. It is the input given to the system. So stdio.h, that header file, is having a definition of a scanf and printf. Then second line, line number 2, it consists of a main function which returns a void. Void means nothing or even not zero. Nothing means nothing. इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीरो होगा, नहीं, नथिंग मीन्स नथिंग। अब वो यूज इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम अगर वाइड नहीं यूज़ करते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो, आप डेवलपर हो, प्रोग्रामर हो, ठीक है, और आपका प्रोग्राम मल्टीपल लोग अगर एक्सेस करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, सो देयर मे बी द चांसेस दैट दे कैन एडिट इट, आपका प्रोग्राम एडिट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे फाइनेंशियल डिटेल्स एडिट होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, हैकिंग होती है, पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, एवरीथिंग कैन बी मेड पॉसिबल। सो आपने जो प्रोग्राम लिखा है अच्छी चीज़ों के लिए, वो भी अल्टर किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। सो दे जस्ट डिसाइडेड दैट that the team who develop that particular part, if you are writing that particular void, ठीक है, so that will be the signature mark। बहुत बार ऐसा भी होता है कि फाइनल ईयर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये प्रोजेक्ट रहता है, उनको प्रोजेक्ट एंड सेमिनार्स रहते हैं, तो प्रोजेक्ट बनवा के लेते हैं बाहर से, बाहर के कुछ वेंडर्स हैं जो डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर्स या फिर कुछ प्रोजेक्ट, वहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ठीक है, वो एक्चुअली उनकी प्रैक्टिस है, उनको लेना है, पैसे देने हैं, पैसे देकर लेना है, वो उनका पार्ट है। बट अगर आप किसी की चीज़ ले रहे हो, यानी कॉपी कर रहे हो, ठीक है, तो यू शुड चेक इट वेदर द पर्सन हैव लेफ्ट एनी सिग्नेचर मार्क और एनी एविडेंस। जैसे अभी महाराष्ट्र में जो चल रहा है, ठीक है, दैट एवरीवन नोज इट, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन इट, बट एविडेंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे हमको पता चल सकता है कि ये सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं, पूरा प्रोजेक्ट बनवा के लेते हैं, सारा का सारा A to Z, और जब उनको प्रेजेंटेशन के लिए बोला जाता है, दे विल प्रेजेंट इट
एंड एट द स्टार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम, इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं उसका जो प्रोग्राम का पहला प्रोग्राम जो रहेगा, जो भी एक्सटेंशन रहेगा, सी रहेगा, सीपीपी, जावा, डॉट नेट, जो भी, उसमें नाम रहता है जिसने बनाया है। तो पहला क्वेश्चन हमारी तरफ से ये जाता है, ये नाम किसका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी आयुष ने वो बनाया है और कोई केतन नाम का लड़का है जो प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और वहाँ पे नाम तो आयुष दिख रहा है, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है केतन को, हु इज आयुष, ठीक है, तो वो बोलता है कि सर वो मेरा फ्रेंड है। अच्छा, ठीक है, फिर उसको कॉल करो, बताओ फिर उसको कि भाई ये तूने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, कि आपने तो ये बनाया नहीं, ठीक है। सो ये ऐसे कुछ एविडेंसेस रहते हैं। लाइक व्हेन वी आर राइटिंग अ प्रोग्राम, एवरीवन इज हैविंग देयर ओन सिग्नेचर, हर कोई अपना कुछ ना कुछ वहाँ पे सिग्नेचर छोड़ता है, ठीक है, हर किसी की एक स्टाइल रहती है लिखने की। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं कि उनको एक आदत रहती है, प्रोग्राम अगर लिखते हैं, ये जो प्रोग्राम है, यहाँ पे आपको एक भी कमेंट नहीं दिख रही है। कमेंट मीन्स ये हैश इंक्लूड क्या करता है, मेन क्या करता है, प्रिंटफ क्या करता है, या आउटपुट कैसे आया, ठीक है, दैट वी कैन राइट इन अ पर्टिकुलर कमेंट पार्ट, या आप कमेंट पार्ट में लिख सकते हो। तो बहुत से बच्चे उस प्रकार से लिखते हैं, तो वो उसकी सिग्नेचर हो गई, ठीक है। बहुत से बच्चे शॉर्टकट्स भी यूज करते हैं वाइल राइटिंग द प्रोग्राम्स, सो उनकी वो सिग्नेचर हो गई। सो मेक श्योर दैट व्हेन दे डिजाइन द पर्टिकुलर प्रोग्राम, they design the void which will print nothing, which will not using with the values as a zero also, it is just a part as a nothing, and it contains all the program logic, that means main class जो है उसमें पूरा का पूरा प्रोग्राम का जो लॉजिक है वो इनबिल्ट रहता है। then coming towards the line number 3, that is opening parenthesis, it contains the opening brackets which points to the start of a main function। मेन फंक्शन को आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मेथड भी बोल सकते हो। अब तक के हमने मेन फंक्शन या फिर मेन क्लास, बट अब हम उसको मेथड भी बोल सकते हैं। सो दैट मेथड इज हैविंग ऑल द फंक्शनैलिटी which would like to perform the operation and we will get the output, right? Then line number 4, it contains an output operation that can be carried out using the printf। ये जो आउटपुट है, आउटपुट क्या चाहिए हमको, हेलो प्रिंट करना है, दैट्स इट। सो ये लिखा है हमने printf फंक्शन में, whose definition is available in the stdio.h मीन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में वो लिखी गई है। बिफोर यूजिंग द printf or scanf, we have to include stdio.h in the program। it prints the hello message on output screen। अब ये जो हेलो मैसेज प्रिंट किया है, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स है इसके अंदर जो डबल कोट्स है, इसमें हम सिंगल कोट्स यूज कर सकते हैं क्या, एनीवन? कैन वी यूज द सिंगल कोट्स? No, sir. सर्टनली नॉट। सिंगल कोट्स किसके लिए रहते हैं? Single characters. सिंगल कैरेक्टर्स के लिए। और डबल कोट्स यूज होते हैं स्ट्रिंग के लिए, या फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर देयर, bunch of characters are there, right? Then line number 5, it contains again the closing brackets or the braces, that means the end of the main function or the main method। once the execution of a main function ends, then the execution of the program is also ends, right? अगर एक बार वो करली ब्रैकेट्स क्लोज करली ब्रैकेट्स आ गया, क्लोजिंग, then it will stop the execution of the current program, right? So any difficulty in the first program, or any query anyone want to ask, any part that you not understood? सेमीकोलन क्यों देते हैं हम? इन ऑर्डर टू एंड दैट पर्टिकुलर लाइन, जैसे फुल स्टॉप देते हैं इंग्लिश में, मराठी में, और उसी प्रकार से हम सेमीकोलन देते हैं। सो इसके ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन, एनीवन? सर void remains का रिपीट करिए। void main, when we are talking about the main method or main function, instead of writing a simply main अगर लिखते हो आप, तो जैसे हमें अभी हमने देखा है, तो it requires a return 0, right? So
we have a simple main, we have to write the one more line. So while we are writing a code, our primary prerequisite is that we should reduce the number of lines of code. ये सबसे पहले important हमारी जिम्मेदारी रहती बीइंग एज अ प्रोग्रामर, बीइंग एज अ डेवलपर, कि नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड हम रिड्यूस कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा. क्यों? क्योंकि जितनी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड कम रहेगी, उतना उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए जो समय लगेगा वो कम लगेगा. और समय अगर कम लगता है, इट मीन्स दैट योर सिस्टम कैन परफॉर्म फास्टर, क्योंकि लाइन्स ऑफ कोड कम है और फास्टर परफॉर्म करेगी तो परफॉर्मेंस सिस्टम का भी बढ़ेगा. जो आउटपुट आएगा यूज़र के लिए, यूज़र भी हैप्पी रहेगा. जैसे आप देखते हो एटीएम पे जाने के बाद बहुत से ऐसे एटीएम हैं प्राइवेट बैंक्स के, एचडीएफसी, एक्सिस या फिर आईसीआईसीआई, बहुत क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं इफ़ यू हैव द एक्सपीरियंस. वही अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर कोई नेशनलाइज बैंक है जिसमें एसी रहता है एटीएम के लिए, बट एसी बंद रहता है, ठीक है, तो ऐसे अगर सिस्टम पे जाते हो, एटीएम्स पे जाते हो, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि एटीएम इंसर्ट करने के बाद करीब करीब 1.5 से 2 मिनट आपको तो ये इसीलिए रुकना पड़ता है कि वो वैलिडेट करता है, राइट. फिर उसके बाद कुछ ऑप्शंस आते हैं, फिर उसके बाद ऑपरेशंस होता है और तब तक आपको वेट करना पड़ता है, राइट. सो वेटिंग इफ इंक्रीजेस, यूजर गेट्स पैनिक, राइट, क्योंकि एवरीवन वांट्स एवरीथिंग इन अ वेरी लेस टाइम. बहुत क्विकली चाहिए सबको, फास्ट चाहिए, ठीक है. वेटिंग करना नहीं चाहता कोई. अगर आप उस सिस्टम से वेटिंग करवाना चाहते हो लोगों को, तो आपकी सिस्टम कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है. सो ये चीज़ें होती हैं. पहले एमबी में रहता था हमारा मोबाइल का डेटा, कुछ तो भी एमबी मिलता था, अभी जीबी में मिलता है. जियो जब से पॉपुलर हो गया, जियो जब से लॉन्च हो गया, ठीक है, सब 1.5 GB 2 GB डेटा देते हैं हर दिन, राइट. तो सर्फिंग जो करते हैं हम बहुत ही क्विकली होता है, फास्ट होता है, ठीक है. वही अगर आपको आज अगर कोई बोलता है कि चलो ठीक है मैं आपको 500 MB का डेटा देता हूँ रोज फ्री विदाउट एनी पैसे, कोई लेने वाला है क्या 500 MB का डेटा रोज? एनीवन? आई गेस कोई तो भी मैसेज किया किसी ने, नहीं. एनीवन? एनीवन इज इंटरेस्टेड टू गेट अ 500 MB डेटा फ्री? No, sir. Certainly not. Really? Hello? Yes, sir. No, sir. ओके. नाही, आज तसे मला असं वाटतं की सर्वेश आणि मी आम्ही दोघंच जण आहोत. बाकी होळीच्या निमित्ताने सगळे बिझी आहेत, है ना? नाही सर. म्हणजे अच्छा आहेत का? अच्छा, ओके ओके. जागे आहेत ना सगळे? आहे ना. ओके हो ओके हो आहे सर. Yes, sir. ओके ओके ओके. मी विचार केला की म्हटलं जागे आहे की नाही, कारण कसं काल होळी झाली, बरेचसे थकले असतील आणि भुकाही लागल्या असतील, म्हणून म्हटलं सगळे एकदम डिस्चार्ज आहेत, कोणी काही बोलायलाच तयार नाही आहे, ठीक आहे. इट्स ओके. बट वी विल नॉट गेट use 500 MB every day. We will use more than that of and we require a more speed, right. ये हमारी रिक्वायरमेंट रह ही सकती है क्योंकि हमको अभी ऑनलाइन क्लासेस करने हैं, ऑनलाइन बहुत सी एक्टिविटीज़ करने हैं, तो ये रिक्वायरमेंट कभी किसी की नहीं रहेगी कि हमको कुछ भी डेटा, कितना भी डेटा मिल जाए तो भी चल जाएगा. सर्टनली नॉट, ठीक है. वी विल रिक्वायर अ मोर डेटा विथ अ गुड क्वालिटी ऑफ अ स्पीड. तो ये जो स्पीड आपको मिलती है ये नेटवर्किंग डिवाइसेस से मिलती है, तो उसमें भी सी के बहुत से प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं. तो अगर आपका प्रोग्राम की जो लेंथ है, मीन्स नंबर ऑफ लाइंस, यहाँ पे कितनी है, 5 लाइन्स है सिर्फ, ठीक है. 5 लाइन में आपको क्या मिल रहा है, एक हेलो मिल रहा है जो कि 6 कैरेक्टर का है, 6 भी नहीं है, वो भी 5 का ही है. 5 कैरेक्टर का एक वर्ड मिल रहा है, उसके लिए 5 लाइन लिखनी पड़ रही है. और अगर एक कंप्लीट आपको थाउजेंड्स और 10,000 लाइंस का अगर आउटपुट चाहिए, जस्ट प्रिंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी इतनी ही लाइंस लिखनी पड़ेंगी. क्या थाउजेंड्स लाइन? सवाल समझ में आया? आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन?
No, sir. Please repeat. हाँ, Sir, repeat. आई वॉन्ट टू प्रिंट 1000 लाइन्स ऑफ अ डेटा। सिर्फ प्रिंट करना है, जैसे हेलो प्रिंट हुआ वैसे ही वो 1000 लाइन्स ऑफ डेटा प्रिंट करना है। तो उसके लिए मुझे 1000 लाइन्स का कोड लिखना पड़ेगा कि ये 5 लाइन का कोड सफिशिएंट है। Sir, 5 लाइन का कोड सफिशिएंट है. इज इट सो? एनीवन एल्स? Yes, sir. Is it sufficient? 5 lines code is sufficient. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Certainly correct. So this code, if you are writing once, you can Yes, sir. use it as per your requirement. जैसे आपको रिक्वायर्ड रहेगा उस प्रकार से आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये रीयूजेबिलिटी जो है सी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सिमिलर टाइप का है कि हेलो प्रिंट करना क्या यानी क्या, और 1000 लाइन्स ऑफ कोड, कोड नहीं, कुछ टेक्स्ट मटेरियल प्रिंट करना क्या, वन अँड द सेम थिंग. जसं आपण म्हणतो ना, शीतावरून भाताची परीक्षा केल्या जाते. आपण पूर्ण भात खाऊन नाही पाहत शिजला की नाही शिजला. छोटूसा एक त्याच्यातला एक दाना काढतो, तो शिजला जर असेल म्हणजे पूर्ण भात शिजला. सिमिलरली इफ यू आर रायटिंग अ हॅलो प्रिंट, देन इट मीन्स दॅट यू कॅन प्रिंट एनीथिंग, एनी डेटा. कितीही मोठा डेटा असेल तरी तुम्ही तो प्रिंट करू शकता विथ द हेल्प ऑफ ओनली 5 लाईन्स. बट दॅट डेटा शुड बी एनक्लोज विथ अ डबल कोट्स. डबल कोट्समध्ये तो डेटा असला पाहिजे. ठीक आहे, सो दॅट इज अ पार्ट. Then I asked that the question that anyone is having any difficulty, but किसी ने पूछा नहीं. मैं ही पूछता हूँ आपको कि जैसे printf के बाद में सेमीकोलन दिया है, वैसे void main के बाद में या फिर hash includes str.h के बाद में सेमीकोलन क्यों नहीं दिया है? क्वेश्चन समझ गया? Have you understood my question? Yes, सर सेमीकोलन जो होता है वो सर लाइन चेंज करने के लिए होता है. ओके, तो फिर void main के बाद लाइन चेंज हुई कि नहीं हुई? हैश इंक्लूड str.h के बाद लाइन चेंज हुई कि नहीं हुई? सर हुई, बट वॉइड मेन एंड हैश इंक्लूड वगैरह जो होता है वो प्रिंट नहीं होता ना प्रोग्राम में. जो हमारा सिंटैक्स है नीचे का कर्ली ब्रैकेट के बाद का वही भी प्रिंट होता है. ओके, सो जो भी आप मेन में लिखते हो या फिर जो प्रिंटफ में लिखते हो उसी के लिए सिर्फ सेमीकोलन यूज किया जा सकता है, राइट? ऐसा ही बोलना है यस आपको? सर. ओके ओके, एनीवन एल्स? वर्ड सर मेन वो के, हेडर फाइल है इसलिए. अच्छा हेडर फाइल है इसलिए, यानी स्पेशल प्रिविलेज मिल जाएगा उनको, ऐसा हो जाएगा वो. फिर वर्ड मेन क्या है? वो तो हेडर फाइल नहीं है, उसको भी स्पेशल प्रिविलेज कि सेमीकोलन नहीं है उनको, दोनों को. सिर्फ प्रिंटफ को सेमीकोलन है. अगेन एनीवन? No one want to try it? तर सेमीकॉलन नंतर प्रोग्राम एंड होतो, बट वॉइड मेन नंतर जे कर्ली ब्रॅकेट आहे तिथून प्रोग्राम पूर्ण एक्झिक्यूट होतो, म्हणून आपण तिथे सेमीकॉलन देत नाही. हाँ, इट इज पार्शली करेक्ट. जे 75% करेक्ट आहे तुमचा आन्सर. ईश्वरी आहे काय, कोण आहे, कोण बोलताय? अनुराधा. अनुराधा, yes. So in case of void main, you are right that void main will start with the opening parenthesis means curly brackets and closing brackets. ठीक है, अगर वहाँ पे हम सेमीकोलन दे देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ कि ये चीज़ें कैसे वर्कआउट होती हैं. ठीक, this is online compiler and inside that we are writing the code, right? ये पूरा का पूरा हम निकाल के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. ठीक, void में str.h. ठीक है, ये नॉर्मल है. ठीक, इसको हम कुछ भी नहीं करते, छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करते, डायरेक्टली हम प्रिंट कर देंगे हेलो. दैट हेलो प्रिंट हो गया. इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन? यस सर. ओके, Yes, now sir. यस सर. now what we will do,
we will do that semicolon after a void main, and then we will check it. Now it shows compilation failed due to following errors. ठीक है, पहला उसने बताया expected identifier और ब्रैकेट बिफोर कोलन दैट इज अ टोकन. ठीक है, उसके पहले ये जो ओपनिंग करली ब्रैकेट्स है और ये जो ब्रैकेट्स है इसके पहले और इसके बाद में या इसके बीच में, ठीक है, ये एक कुछ तो भी अनएक्सपेक्टेड कुछ तो भी चीज़ है जिससे मेन जो है वो टर्मिनेट हो रहा है. सेमीकोलन इज यूज्ड फॉर अ टर्मिनेटिंग द गिवन लाइन. दैट इज द रोल ऑफ अ सेमीकोलन. कि वो जो गिवन लाइन है जहाँ से ये प्रिंटफ लाइन स्टार्ट हुई है यहाँ तक के आई यहाँ पे, और उसके बाद उसको आपने टर्मिनेट कर दिया ना, फुल स्टॉप कर दिया. वही वैसे ही वॉइड मेन के बाद अगर आप उसको लिखते हो तो वहाँ पे वॉइड मेन खत्म हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे एंटर ही नहीं होगा ओपनिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस पे. तो उसमें दिक्कत ये जाएगी कि वो प्रिंटफ एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आउटपुट नहीं आएगा. सो इट विल शो द कंपाइलेशन फेल्ड, एरर बता देगा. दैट वाज द फर्स्ट पार्ट. देन सेकंड पार्ट, if you put the semicolon after the hash include stdio.h header file. ठीक है, जैसे किसी ने तो बोला था कि हेडर फाइल को हम सेमीकोलन नहीं देते, तो ये भी करेक्ट है, ये गलत नहीं, ये भी करेक्ट है. बट क्यों नहीं देते हैं, देन दैट वी विल सी हियर. वार्निंग दे रहा है वो. ठीक है, एक्स्ट्रा टोकन्स एट द एंड ऑफ अ हैश इंक्लूड डायरेक्टिव्स. ठीक है, एक्स्ट्रा टोकन आपने यूज किए, वार्निंग है, बट आपका आउटपुट आ चुका है. राइट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, हर किसी का एक वे रहता है कि जैसे अब हम पढ़ रहे हैं तो ये प्रोग्राम जो है हमने थियोरेटिकली पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लिया, सबको समझ में भी आ गया, एक्सप्लेनेशन भी समझ गया. बट उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमको एक्सपेरिमेंट करनी पड़ती है प्रैक्टिकली, और जब तक कि हम उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं करते, उसमें कुछ जनरलाइज भाषा में हम बोलेंगे उसमें कुछ काड़ा नहीं करते, कुछ उसमें गलत चीज़ नहीं करते, तब तक कि हमको पता नहीं चलता. अब ये यहाँ पे डॉट एच है, उसके जगह पे मैं डॉट एच के जगह पे डॉट ए लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है. तो मेक श्योर दैट कि एस टी डी आई डॉट एच हैश इंक्लूड एस टी डी आई डॉट एच के बाद अगर सेमीकोलन लेते हो तो वार्निंग आती है और वो बोलता है कि एक्स्ट्रा टोकन आपने यूज़ कर लिए, बट आउटपुट आता है, प्रोग्राम रन होता है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेमीकोलन हटा देता हूँ, डॉट एच की जगह पे मैंने डॉट ए यूज़ कर लिया. अब देखिए, अब ये डायरेक्ट फैटल एरर बता रहा है, फैटल एरर, कंपाइलेशन टर्मिनेटेड. इसका बोलने का है मतलब कि भाई नो सच फाइल और डायरेक्टरी इन द गिवन प्रोग्राम. आपके प्रोग्राम में वो डायरेक्टरी नहीं है, फाइल ही नहीं है ऐसी. ठीक है, डॉट ए वाली. ठीक है, तो यहाँ पे आपको डॉट एच ही लेना पड़ेगा. अब ये डॉट की जगह पे जैसे बोल रहे हैं कि सी में जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप यानी डॉट होता है, वो यहाँ पे भी डॉट यूज़ किया है. डॉट के जगह पे अगर आपने सेमीकोलन यूज़ कर लिया तो देखते हैं क्या होता है. तो फिर से सेम फैटल एरर, नो सच फाइल और डायरेक्टरी प्रेजेंट. सो देयर सिंटैक्स इज टू मच इंटैक्ट, यानी उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते. ये सिंटैक्स है एज इट इज, ऐसे के ऐसे ही आपको उसको इस्तेमाल करना है. सॉरी, उसको इस्तेमाल करना है. सो दैट्स वाई व्हाइल यू आर राइटिंग दिस थिंग्स, सो जब भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो मोबाइल पे या फिर ऐप पे या फिर ऑनलाइन कंपाइलर पे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये करके देखो. ठीक है, यहाँ पे अगर ये जो ग्रेटर देन वाला साइन है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ इस ब्रैकेट से. ठीक है, सी में तो ये ब्रैकेट यूज़ होता है, फिर भी वो क्या बोलेगा, फाइल हैश इंक्लूड एक्सपेक्ट्स फाइल नेम और हैश इंक्लूड stdio.h इन मेन फंक्शन देर इज़ अ वार्निंग. दो टाइप की उन्होंने वार्निंग दे दी. ठीक है, यानी वो भी वो सहन नहीं करता है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, थोड़ी सी भी गलती है तो एरर देने वाला है. तो उसके सिंटैक्स जो है वो हमको अच्छे से प्रैक्टिस करके याद करने हैं. ये उसको मगअप नहीं करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके याद करने हैं कि यहाँ पे अगर आप एस टी डी आई का स्पेलिंग गलत लिखते हो, डॉट एच के जगह पे डॉट ए, डॉट बी, डॉट सी कुछ भी लिखते हो, डॉट के जगह पे सेमी कोलन यूज़ करते हो,
whatever the changes that you have done, so that it should be known to the compiler. और उसको नहीं पता है तो वो एरर देगा. मैंने अभी मेन हटा दिया, ठीक है. मेन हटने के बाद वो क्या बोल रहा है, मैंने वॉइड हटा दिया, मेन है सिंपल खाली. उसको बताया नहीं मैंने कि ये वॉइड नहीं यूज़ कर रहा, मैं डायरेक्ट मेन यूज़ कर रहा है. तो वहाँ पे आ गई वार्निंग, रिटर्न टाइप डिफॉल्ट्स टू इंटीजर. अब ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने इंटीजर कंसिडर कर लिया, और इंटीजर कंसिडर करके उसने वार्निंग दे दी, बट आउटपुट दे दिया, आउटपुट आ गया. अब यहाँ पे रिटर्न 0 अगर मैं यूज़ करता हूँ एंड देन रन करता हूँ तो वार्निंग देता है क्या? अभी भी वार्निंग दे रहा है, ठीक है. सो इट वेरीज फ्रॉम द कंपाइलर टू कंपाइलर, राइट. यानी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे इंटीजर लिखोगे और फिर रन करोगे और नीचे रिटर्न 0 तो है ही, तो आपको उसने आउटपुट दे दिया, राइट. तो इट डिपेंड्स ऑन द फ्यू कंपाइलर्स. अब ये तो ऑनलाइन कंपाइलर है, ये टर्बो सी वाला नहीं है, ये ऑनलाइन कंपाइलर जीडीबी का है. सो यहाँ पे इंटीजर अगर मैं नहीं लिखता हूँ और रिटर्न 0 लिखता हूँ तो भी वो वार्निंग देता है. इंटीजर मेन लिखता हूँ, ठीक है, तो वो वार्निंग नहीं देता है. चलो हम एक ट्रायल करके देखते हैं. CHAR कैरेक्टर, कैरेक्टर मेन लिखते हैं, क्योंकि ये हेलो जो प्रिंट कर रहे हो आप वो तो कैरेक्टर ही है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर. हम कैरेक्टर मेन लिखते हैं. लेट्स सी, चलता है, दौड़ता है एक्चुअली वो तो, ठीक है. तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं ये आपको तभी पता चलेगी जब आप उसमें प्योरली कुछ उटपटांग हरकतें उसके साथ करोगे, कोडिंग के साथ, प्रोग्रामिंग के साथ, ठीक है, काड़ा करोगे उसमें, ठीक है. सो दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आप उसमें चीज़ें कर सकते हो. कुछ इसमें आउटपुट आएगा, कुछ इसमें नहीं आएगा, बट ये अगर आप नहीं करोगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा और आपको उससे पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों होता है. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो प्रोग्राम है, सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है, वो आप लर्न नहीं कर सकते. मेक श्योर दैट उसको आप भूकंप पट्टी बोलो या फिर उसको बाय हार्ट लर्निंग बोलो या फिर जो भी आपकी टर्मिनोलॉजीज है हम उसको याद कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है. सिंटेक्स याद कर सकते हो, मेथड्स याद कर सकते हो, हाउ टू राइट इट दैट आप वो भी याद कर सकते हो. बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको वॉइड मेन कैसे लिखा जाता है वो बताया, मैंने कैरेक्टर के बारे में बताया नहीं. बट यहाँ पे अब हम डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं तो वो एरर भी नहीं दे रहा है, आपका आउटपुट आ रहा है, ठीक है. सो ऐसी अनगिनत चीज़ें आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. when you do the experiment you will get the variety of result and you will get a more interest in that particular part that I'm trying to tell you, right. Now anyone having any difficulty, any query? No, yes, yes, no. No, sir. No, sir. Okay, okay. No, sir. No, sir. I thought I lost my connection, internet. Repeat question, sir. Aditya, which question repeat? No, sir. आदित्य, कौन सा वाला क्वेश्चन रिपीट करना था? मैंने अभी चैट पढ़ी आपकी. आई गेस आदित्य इज नॉट देयर. ओके, सो दैट इज अ प्रिंटिंग अ हेलो मैसेज, ठीक है. देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोग्राम, सेकंड प्रोग्राम है हमारा. सो इनसाइड दैट सेकंड प्रोग्राम, सर. हाँ, यस यस सर्वेश. सर सर मतलब ये वाला प्रोग्राम में मतलब मैंने भी करके देखा कि मतलब अगर हमने इंटीजर हटा दिया वो प्रोग्राम से, मतलब वो जीडीबी में लिखा था ना इंटीजर, इंटीजर उसके बाद बोलिए बोलिए बोलिए, कंटिन्यू. इंटीजर मेन, तो इंटीजर हटाने के बाद भी वो प्रोग्राम रन होता है मगर वो वार्निंग देता है. तो मतलब प्रोग्राम रन हो गया क्या, मतलब कंपाइल हो गया, फिनिश्ड? यस यस यस, इट्स कंपाइल्ड, इट्स कंप्लीटली कंपाइल, ठीक है. वो वार्निंग देता है, वार्निंग पार्ट कैन बी इग्नोर्ड,
हम उसमें वार्निंग पार्ट इग्नोर कर सकते हैं, बट जब आप कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से डील करते हो, उसमें अगर कुछ वार्निंग है और आंसर वेरी हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहे हो, मैं इसके रिलेटेड पार्ट बता रहा हूँ, मैं सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, कि अगर सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना रहे हो और उसके ऊपर लोड कितना बेयर करेगा ये आप कैलकुलेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ सी प्रोग्रामिंग। अब उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर एरर आती है तो वो आपको सॉल्व करनी है। अगर उस प्रोग्राम में वार्निंग आती है और वार्निंग के वजह से आंसर फ्लक्चुएट होता है, देन वी हैव टू टेक इनटू द कंसिडरेशन दैट वार्निंग। इन अदर केसेस, इन जनरल केसेस, हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, यस sir. सर। हाँ, इन जनरल केसेस वार्निंग्स दैट मे बी, वी कैन से दैट वी कैन इग्नोर इट, ठीक है, वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हो इन जनरल केस, बट देयर शुड बी द गुड प्रैक्टिस। जैसे हम भी बोलते हैं ना, इथिकली इफ यू आर टॉकिंग, देयर शुड नॉट बी एनी एरर, देयर शुड नॉट बी एनी वार्निंग, क्योंकि एरर अगर है तो वो तो प्रोग्राम आउटपुट देने ही वाला नहीं है, बट वार्निंग है तो आउटपुट दे देता है। तो इथिकली इफ यू आर टॉकिंग, देयर शुड नॉट बी एनी वार्निंग, बट इन प्रैक्टिकली इफ यू आर टॉकिंग, वार्निंग अगर आती भी है उसको आप निग्लेक्ट भी करते हो तो भी चल जाता है, ऐसा कोई मेजर रोल नहीं है उसका। ओके, यस सर। ओके देन, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोग्राम। सो अपना टाइम खत्म हो गया क्या, कितने बज गए? Okay then, so we'll see only the program and description we will see the in next lecture, tomorrow's lecture. So tomorrow will be the last lecture, सेम टाइमिंग पे है, तो तब आप हम रिवाइज भी करेंगे पूरा फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट, एंड अलॉन्ग विद दैट द टू टॉपिक्स दैट वी विल कवर, दैट सब रूटीन एंड मैथ फंक्शन, राइट? द hash include stdio.h void main, both part is same. Then there is a declaration of a variables, that means integer a, b, c and sum. These are the four variables. Out of that four, three variables, their values we will take from the user, and the fourth variable is nothing but the summation of all the values of a 3. Then there is a printf statement, enter the three numbers, ये आप मैसेज दे रहे हो यूजर को. Then scanf, %d and %d, three times you are using %d. Why? Because we want a three numbers to be readed by the compiler. C के कंपाइलर ने तीन नंबर्स को रीड करना चाहिए, इसलिए हम थ्री टाइम्स %d लिख रहे हैं. इनको बोला जाता है एक्सेस स्पेसिफायर. That access specifier has the role to read the appropriate data given by the user. अब यूजर ने अगर गलती से इंटीजर नंबर देने के बजाय फ्लोट नंबर अगर दे दिया, तीन में से एक कोई तो भी नंबर गलत दे दिया, तो कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा, क्योंकि ये जो %d ये तीनों जो है वो इंटीजर के लिए ही काम करते हैं, वो फ्लोट के लिए, कैरेक्टर के लिए, स्ट्रिंग के लिए काम नहीं करते हैं, राइट? देन देर इज डबल कोट्स, inside the double quotes the access specifier are written. After that there is a comma, then %a. That %a is a special symbol, that ampersand. A is the variable, यहाँ पे a क्या है, वेरिएबल है, b क्या है, वेरिएबल है, c भी वेरिएबल है, ठीक है, बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्परसेंड, इट इज द एड्रेस ऑफ a. कोणाचा माईक चालू आई राहिला? इथं बस ना, ऐकणं हे ऐकणं ये इकडे अशी बस. होतं असं कधी कधी. सहर्ष, जेवण झालं का? सहर्ष, हो ते हो सर, आम्हाला हो सर. ते आम्हाला ऐकू येऊन राहिलं ना, पण आमचं व्हायचं आहे ना. एनिवेज, so %d, three times we are using just for to ensure that three numbers that we have to read with the help of a scanf. So %a is nothing but the address of a, %b address of b, and %c is the address of c. On that particular address the numbers are getting stored, जो यूजर नंबर देने वाला है वो स्टोर्ड होने वाले हैं, ठीक है.
So that is a meaning of a scanf, and there is a semicolon. Then sum equal to a plus b plus c. ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, जैसे हम एडिशन ऑफ 3 नंबर्स करते हैं वैसे ही. एंड देन प्रिंट एफ. यहाँ पे बैकस्लैश एन यूज किया है. बैकस्लैश एन स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन. न्यू लाइन. बैकस्लैश एन स्टैंड्स फॉर अ न्यू लाइन. तो ये जो एडिशन ऑफ 3 नंबर्स है, ये पूरा का पूरा कंटेंट एंड इक्वल टू, ये पूरा का पूरा न्यू लाइन पे आ जाएगा. एंड इक्वल टू अगेन देर इज अ %d. क्यों %d? क्योंकि इंटीजर वैल्यू के साथ आप डील कर रहे हो. इन दैट केस वी हैव टू यूज द एक्सेस स्पेसिफायर which specifies that the number which is stored in a variable sum is having a data type integer. अगर वो integer है तो ही आप %d यूज कर सकते हो और उससे आप उसको प्रिंट कर सकते हो. So we will see shortly in a execution panel that program, how that program will execute. Run. There is errors. Okay, multiple errors are there. So we will solve it. That fatal error, stray 342 in a program, addition, printf. ठीक है. अब ये एरर जो है वो थोड़ा फॉर्मेट कन्वर्शन की वजह से है. यहाँ पे जो डबल कोट्स है वो थोड़े चेंज हो गए हैं. ठीक है, इसके वजह से उन्होंने एरर दे दी. ठीक है. अगेन वी विल कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम. इट विल शो द मैसेज, फर्स्ट मैसेज, दैट इज अ printf मैसेज. एंटर द 3 नंबर्स. ठीक है. सो वी विल एंटर द नंबर्स. 15 स्पेस, यहाँ पे वॉइड स्पेसेस इसलिए देना है कि 2 नंबर्स डिस्टिंग्विश होने चाहिए. देन 25 स्पेस, एम आई ऑडिबल? यस सर. हाँ, Yes, यहाँ sir. पे Yes, कुछ sir. तो भी कनेक्शन लॉस्ट हो गया, तो मुझे लगा कि ये भी चला गया क्या. ओके. 15 स्पेस 25 स्पेस 35. ओके. नाउ इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we will give the 3 numbers: a equal to 15, b equal to 25 and c equal to 35. Correct. And then enter. Hit the enter and we will get the addition of 3 numbers equal to 75. ठीक है. तो ये जो बैकस्लैश n है ये यहाँ पे वर्क करते हुए दिख रहा है हमको. इसको अगर हम निकाल देते हैं और फिर से रन करते हैं तो वी विल सी द सम डिफरेंट रिजल्ट. आउटपुट कुछ अलग तरीके से दिखेगा. 15 स्पेस 25 स्पेस 35 एंटर. ठीक है. न्यू लाइन अगर हम ऐड करते हैं देन उन दोनों के बीच में एक कंप्लीटली न्यू लाइन ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से आउटपुट थोड़ा सा ब्रॉड दिखता है, अलग दिखता है. और यहाँ पे न्यू लाइन अगर हम हटा देते हैं देन इट विल show in a first line there is a numbers and second line there is a addition of these 3 numbers, right?